شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خواتین و حضرات، پہلے تو اتنی آپ نے شاندار مجھے استقبال دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب کینسر کی بیماری کیوں ساری بیماریوں سے الگ ہے؟ دو وجہ. ایک، کینسر کا جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو لوگوں کو ایک دم خوف موت کا آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر کینسر، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر سے بچ ہی نہیں سکتے لوگ. تو ایک تو وہ خوف ہوتا ہے. کسی گھر میں بھی جب کینسر ہوتی ہے تو وہ سارے خاندان کو پھر ایک دم موت کا خوف ہوتا ہے. اور دوسرا کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ سب سے مہنگا علاج ہے. تو یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے پیسے والے لوگ بھی، لیکن سب سے زیادہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں علاج کے، وہ سب سے زیادہ وہ خاندان افیکٹ ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی جلدی علاج نہیں ہے. جس طرح ابھی ڈاکٹر فیصل نے ڈاکٹر عاصم نے آپ کو بتایا کہ کئی دفعہ 6 مہینے علاج چلتا ہے، پھر واپس چیک اپس کے لیے آنا پڑتا ہے. 5 سال تک وہ جو کینسر کا افیکٹی ہے اس کو اپنے چیک اپس کروانے پڑتے ہیں کہ واپس نہ آ جائے کینسر. تو یہ ایک چھوٹا علاج نہیں ہے، یہ ایک بڑا لمبا علاج ہے. یہ تیسری وجہ ہے. تو اس لیے جو کینسر ہاسپٹل ہے اس کی ملک کو بہت ضرورت، کیونکہ یہ دوسرے نمبر پہ جو لوگ مرتے ہیں، ایک ہارٹ ڈیزیز اور دوسرا کینسر سے. تو ایک ملک میں کینسر ہاسپٹل جس میں ساری فیسلٹیز ایک ہاسپٹل پہ ہوں، اس کی کہیں بھی کسی بھی دنیا میں ملک میں بہت ایک نعمت سمجھی جاتی. تو جب آج سے تقریباً 40 سال پہلے میں نے جب سوچا کینسر ہاسپٹل بنانے کا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تب کوئی ایک فیسلٹی نہیں تھی کینسر کی. اور تب زیادہ تر جب کسی کو کینسر ہوتی تھی تو لوگ نہیں بچتے تھے اس سے. اللہ کا شکر ہے آج زیادہ تر اگر کینسر جلدی پکڑی جائے تو مریض بچ سکتا ہے. یہ بہت بڑا چینج آ گیا ہے جب سے یہ ہاسپٹل کا میری والدہ کو جب کینسر ہوئی تو تب سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا چینج آ گیا. تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ جو ڈیتھ سینٹنس ہوتی تھی کہ کینسر ہو گیا تو اب گیا، وہ اب نہیں ہے. اور خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب، وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دل کے امراض کے بعد سب سے زیادہ اموات کینسر سے ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کا جلد علاج ممکن نہیں ہے. کینسر ایک موذی مرض ہے جس کا علاج ہونے میں وقت لگتا ہے. جو سب سے بڑا جو لاہور سے دگنی کیپیسٹی ہے کراچی کے ہاسپٹل کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا سندھ کو بھی کیٹر کرے گا، بلوچستان کو بھی کیٹر کرے گا، اس لیے وہ بہت بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے. اور یہ میں اپنی پاکستانی قوم کو خاص طور پہ داد دیتا ہوں کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک میں لوگ مل کے ہاسپٹل بنائیں اور پھر اس کو چلائیں بھی. بنانا ایک چیز ہے، ہم بڑا کئی دفعہ ہم کرٹیکل ہوتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے پاکستان، یہ نہیں ہے، وہ بھی بری ہے، یہ بھی بری چیز ہے. اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو امیج ہے پاکستانیوں کا اپنا، ہم سمجھتے ہیں ہم ایک عظیم قوم ہے، تو ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ادھر تک پہنچے،
जिधर हमारा पोटेंशियल है। हम जब बाहर दुनिया में जाते हैं तो देखते हैं कि दुनिया अगर प्रोग्रेस कर रही है तो लोग ज़्यादा तनकीद करते हैं अपनी कि हम क्यों पीछे रह गए। लेकिन मैं एक क्वालिटी आपको पाकिस्तानियों की बताता हूँ जिसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि शायद ही दुनिया में कोई इतने खुले दिल की कौम है जो जिस तरह की पाकिस्तानी है, शायद ही। कोई इसकी मिसाल नहीं है कि सारी कौम मिलके पहले एक हॉस्पिटल बनाए, फिर सारी कौम मिलके उसको चलाए। मैं जब हॉस्पिटल के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था तो मुझे लोग कहते थे कि जब हॉस्पिटल तो बनाने के चलाएंगे कैसे। तो मैं तब भी कहता था कि जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं हॉस्पिटल बनाने में वही चलाने में मदद करेंगे। तो कोई नहीं समझता था कि ये हॉस्पिटल जिस पे मैंने पहले दिन से मैंने कहा था कि 70% मरीजों से ऊपर का मुफ्त इलाज होगा, कैंसर के मरीजों का। ये आपको अंदाज़ा नहीं है और आपको अपने आप को अपनी कौम को हमें मुबारक देनी चाहिए कि कोई दुनिया की मिसाल नहीं है कि एक कैंसर हॉस्पिटल, प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल जिसमें 75% मरीजों का मुफ्त कैंसर का इलाज हो और वो कोई गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर हो, कौम उसको फंड करे। और उसकी भी बहुत बड़ी वजह, ये भी मैंने बड़ा सोचा कि क्या वजह है कि हमारे लोग इतने खुले दिल के हैं। उसकी वजह है कि अल्लाह हमारे पे ये लाजिम कर देता है कि हमने हर साल ज़कात देनी है। मुसलमानों के लिए ये फ़र्ज़ है कि आपने अपनी आमदनी से एक हिस्सा निकाल के मुस्तहिक लोगों के लिए देना है ज़कात में। ये बहुत बड़ी एक पावर है हमारे पास। अगर ये ना होती पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी तो फलाई रियासत नहीं है, तो यहाँ गरीबों का कोई पूछने वाला ना होता। क्योंकि हमारे लोग इतनी ज़्यादा ज़कात देते हैं तो जो स्टेट का काम है, और मेरा ख्याल है स्टेट का काम सबसे बड़ा काम ये है कि अपने कमज़ोर तबके का ध्यान रखना, फलाई रियासत बनाना। तो जो पाकिस्तान की कौम लोग पैसा खर्च करते हैं और ये सबसे बड़ा ये मौजूद है। कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, ये एक मूजी मर्ज है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने ज़कात का निज़ाम बनाया है। सबसे ज़्यादा लोगों का मुफ्त इलाज किया कैंसर का। ये 3 महीने के बाद हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। वो चीफ एग्जीक्यूटिव तो 3 महीने के बाद चला गया। हॉस्पिटल आज आप देखें, आज आपने एक फिगर मिस कर दी कि 63 बिलियन रुपीस अब तक 63 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम ने डोनेशन दी है मुफ्त इलाज के लिए शौकत खानम को। तो शौकत खानम अब तक 95 में शुरू हुआ था, अब तक 63 अरब रुपया गरीब मरीजों के इलाज पे खर्च कर चुका है। ये मौजज़ा है। ये आपको किसी दुनिया के अंदर इस तरह की इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगी जो पब्लिक ने इतनी ज़्यादा और हर साल ज़्यादा पैसा देते हैं। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह की बरकत इस इंस्टीट्यूशन पे तब तक आती रहेगी जब तक हमने जो वादा किया था लोगों से वो हम पूरा करें। और वो वादा क्या था? नंबर 1 कि यहाँ 70% से ऊपर मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। और ये बड़े बड़े बुरे वक्त आए शौकत खानम के, बड़े मुश्किल मरहले आए, लेकिन हमने कभी जितना भी मुश्किल वक्त आया हमने 70% मरीजों से कम इलाज नहीं किया। हमने ज़्यादा का ही इलाज किया, कम नहीं किया। यानी हमने अपनी प्रॉमिस पे रहे कि
शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1995 में शौकत खानम शुरू हुआ था और अब तक अवाम ने 63 अरब रुपया मुफ्त इलाज के लिए अतिया किया। हर साल अवाम ज़्यादा पैसा देते हैं। इब्तदाई स्टेज पर कैंसर की तशखीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने यही भी कहा कि पाकिस्तानी कौम फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अल्लाह ताला ने ज़कात का एक निज़ाम बनाया है। देखें कि क्या अमीर और गरीब के पैसे देने वाले का और जिसका मुफ्त इलाज हो रहा है, क्या हॉस्पिटल उसमें कोई फ़र्क करता है? और आप मुझे ये सबसे बड़ा, और मेरे ख्याल में अल्लाह की इसलिए ही इस हॉस्पिटल पे उसकी ख़ास बरकत है कि कभी भी आज तक हर मुश्किलों के बावजूद कभी हस्पताल के दरवाजे बंद नहीं हुए, हमारी कभी पैसे की कमी नहीं हुई। और तीसरी चीज़ कि 2 हॉस्पिटल पाकिस्तान में कम हैं। हमारे हर रोज़ कैंसर के मरीज़ आते हैं और हमारे पास एक लिमिटेड जगह होती है, और उन मरीज़ों को कई ऐसे मरीज़ जिनका इलाज हो सकता है, यानी उनकी कैंसर ट्रीटेबल होती है, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं होती उनको हमें वापस भेजना पड़ता है। तो इसलिए ये कराची का हॉस्पिटल हमने शुरू किया हुआ है। आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया। इंशाल्लाह अगले साल वो हॉस्पिटल खुलेगा, और वो उसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमारे लोगों को बाहर इलाज करवाना ना जाना पड़े। मैं अब पैसे वालों के लोगों की भी बात कर रहा हूँ। मैं जब अपनी वालदा को मेरी कैंसर हो तो मैं उनको बाहर ले जाना पड़ा मुझे, और मैं तब क्रिकेट भी खेलता था बाहर, मेरी जगह भी थी, लोग मुझे जानते भी थे, मैं फेमस था एज ए स्पोर्ट्समैन। उसके बावजूद जितनी मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा जब मैंने अपनी वालदा का बाहर इलाज करवाया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ एक पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है कैंसर के मरीज़ को। जब कोई कैंसर की बीमारी हो तो वो चाहते हैं अपनी फैमिली इर्द गिर्द हो, उनके साथ हो, और वो फिर इलाज लंबा चलता है, कीमोथेरेपी होती है, उसका सेशन लंबा होता है। तो इसलिए वो बड़ा मुझे याद है कि वसाइल तो थे, लेकिन बाहर इलाज करवाना मैंने तब सोचा कि ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं हॉस्पिटल बनाना, पैसे वाले लोग अफोर्ड भी जो कर सकते हैं वो भी चाहते हैं कि अपने मुल्क में हो, उनकी फैमिली उनके इर्द गिर्द हो, ताकि उनको सपोर्ट मिले। तो इसलिए कराची का हॉस्पिटल हमने फैसला किया कि उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि इंशाअल्लाह किसी को बाहर ना जाना पड़े। और बाहर जाने में आपको एक और भी मैं चीज़ बताऊं कि वो इलाज जो पाकिस्तान में 10 रुपए का होता है, एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट अगर आप बाहर जाके करवाएंगे इंग्लैंड या अमेरिका, वो 100 रुपए की होगी। 10 गुना ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ता है बाहर। तो इसलिए भी कि पैसे वाले लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अपने मुल्क के अंदर उनका इलाज हो, तो इसलिए हम तीसरा हॉस्पिटल बना रहे हैं। और मैंने शौकत खानम की वजह से, क्योंकि जब मैंने देखा कि लोगों के लिए कितनी बड़ी नेमत है कि गरीब आदमी हॉस्पिटल में आए और उसको कभी फिक्र ना हो कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उसका इलाज हो पूरी तरह। तो मैं हॉस्पिटल में, मेरा ऑफिस था, जब हॉस्पिटल खुला तो 6-7 साल तो मैं हॉस्पिटल में बैठता था। तो उधर मैंने बड़ी चीज़ सीन्स देखे कि मुश्किल में लोग तकलीफ़ पे आते थे, तो उनको ये खौफ जब चला जाता था कि अगर पैसे नहीं हैं तो हमारा इलाज भी होगा, हमें खाना भी मिलेगा, हमारा ध्यान भी रखा जाएगा। हमने बाहर मुसाफिर खाना भी बनाया हुआ था, पता नहीं अब है या नहीं, ताकि वो लोग आउट पेशेंट वो ठहर भी सकें। तो उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि जब भी अल्लाह ने हुकूमत दी तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेके आऊँगा अपने लोगों के लिए। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में जिधर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए हैं। हर ख़ानदान के लिए, जो भी पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, हर ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस हमने रखी है कि 10 लाख रुपए में वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं।
मसलन अब कहाँ एक आम आदमी, एक गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था कि अल-शफा जैसे हॉस्पिटल अपना इलाज करवाए। तो हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस है अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके भी एक कोई भी मज़दूर हो, कोई भी 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकता है। ये पूरा इंशाल्लाह पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम आ रहा है। इससे क्या होगा, मैं आखिर में अब कंक्लूड करूँ, होगा क्या, मेरी ड्रीम ये है कि पाकिस्तान में एक पूरा हॉस्पिटल्स का नेटवर्क बने, लेकिन वो हमें बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर हमें बड़ा मुश्किल था कि डॉक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट्स में, दूर दराज इलाकों में जाके वो काम करें। ज़्यादातर वो डॉक्टर्स जाते नहीं थे और हमें बड़ा मुश्किल होता था कि वो शहरों में तो डॉक्टर्स काम कर लेते थे, लेकिन जो भी मसलन मियाँ वाली जैसा इलाका या जो बखर और ऐसी जो दूर दराज इलाके, वहाँ डॉक्टर्स जाते नहीं थे। तो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उनमें डॉक्टर्स ही नहीं होते थे, तो बड़ा मुश्किल था डॉक्टर्स को भेजना। अब क्या होगा, क्योंकि हर ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड होगा, इसका मतलब ये होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब जाया करेंगे उन इलाकों के अंदर, और वहाँ क्योंकि हर ख़ानदान के पास 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस होगी, वो अब मियाँ वाली जैसी जगह पे, बखर जैसी जगह पे, लिया जैसी जगह पे, राजनपुर जैसी जगह पे, सारी जगह पे लोग जाके और इंशाअल्लाह वो बेचारे लोगों को, क्योंकि मैंने तो ये बड़ा बुरी कहानियाँ सुनी हुई हैं, लोग अब बेचारे दूर से मियाँ वाली से या बखर से या दूर दराज इलाकों से मरीज़ को लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद या पिम्स के लिए, और रास्ते में बेचारा मरीज़ एक्सपायर कर जाता है। तो अब इंशाअल्लाह ये हेल्थ कार्ड की वजह से हमें पूरा हेल्थ सिस्टम सोच रहे हैं कि सारे पाकिस्तान में नेटवर्क बनेगा, खुद ही अट्रैक्ट करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर जाएंगे। बाहर में जो पाकिस्तानी नॉर्थ अमेरिकन फिजिशियंस, जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की बॉडी है अमेरिका की, उन डॉक्टर्स को हमने कहा वो अब इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में आके प्राइवेट हॉस्पिटल सेटअप करेंगे। तो इंशाअल्लाह जो मेरी शुरू किया था मैंने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल से, और जब उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर पॉलिटिक्स में भी आया, मेरा सबसे बड़ा कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को हम एक फलाही रियासत बनाएं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, पाकिस्तान बना था इस्लामी फलाही रियासत। तो शुरू किया हमने शौकत खानम से, फिर आया हेल्थ कार्ड के साथ इंशाल्लाह अब हेल्थ देखते देखते आप देखेंगे कि जिस तरह शौकत खानम को, कि मैं आपको आखिर में एक बात बताता हूँ, मदीना की रियासत, शुरू में पैसे ही नहीं थे वहाँ उनके पास, लोग हिजरत करके आए थे मदीना में मक्का से, गरीब थे मुसलमान, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ही जो पैसा एक्स्ट्रा आता था वो गरीबों में चला जाता था, बेवाओं में, यतीमों में। स्टेट ने जिम्मेदारी ली थी अपने गरीब तबके की। तो वहाँ ये नहीं हुआ था कि पहले पैसा आया था और फिर फलाही रियासत बनी थी। वहाँ ये हुआ था कि पहले इंसानियत का निज़ाम आया था, पहले फलाही रियासत बनी थी, और फिर अल्लाह की बरकत आई थी। ये अल्लाह की बरकत थी कि एकदम वो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि उनमें इंसानियत थी, और इंसानियत के निज़ाम जब एक लेके आते हैं तो अल्लाह की बरकत आती है। और ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के हैं वो। तो जो भी इंसानी माशरा उन असूलों पे चलेगा जो मदीना की रियासत पे कायम किए गए थे, वो इंसानी माशरा ऊपर आ जाएगा। तो आज अगर आप जाके देखें स्कैंडिनेविया में सबसे बेहतरीन अगर आपने देखनी है फलाही रियासत, तो स्कैंडिनेविया चले जाए और देखें वहाँ कैसी खुशहाली है। आप पाकिस्तानी जो रहते हैं नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में, कभी उनसे पूछे तो सही,
وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے, انسانیت کا نظام کیسا ہوتا ہے, اور دیکھیں کہ وہ کتنے خوشحال معاشرے ہیں, امن ہے وہاں. وہی سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں, کوئی وسائل نہیں ہیں لیکن خوشحال ہیں وہ لوگ, کیونکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ نے جو پرنسپلز دیے ہوئے تھے مدینہ کی ریاست میں اس پہ چل رہے ہیں. تو ہم جو مسلمان معاشرے ہیں ہم ان سے بڑے دور چلے گئے ہیں ان پرنسپل سے. اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ واپس جاتا ہے ان اصولوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیے تھے, اور وہ تھا انسانیت کا نظام, انصاف کا نظام اور خودداری. ایک غیرت مند قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے اور جو لا الہ جو اصل میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, وہی قومیں اوپر آتی ہیں. جو قومیں ان اصولوں سے پیچھے چلی جاتی ہیں بدقسمتی سے ان کی زندگی, ان کی قوموں میں ذلت آتی ہے, ان کی عزت نہیں ہوتی دنیا میں. اور انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چل چکے ہیں, وہ راستہ جو انشاءاللہ اس کو پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا. بہت بہت شکریہ.